Assalamu alaikum, dear students. This is Zuhaib sir coming up with the second lecture regarding the morphology of angiosperms. As you know that in the first lecture we had some discussion regarding angiosperms. हमने different characteristics of angiosperms को discuss किया. उसके बाद हमने कहा कि morphology जो angiosperms की है उनको divide किया गया दो groups में, one vegetative morphology and another one that is reproductive morphology. Now, before discussing the morphology of all these structures, let's discuss the classification of plants on the basis of habitat. On the basis of habitat, dear students, habitat आपको पता ही होगा कि habitat is the place where an organism live. So on the basis of habitat, plants are classified into following categories. Now the first category, hydrophytes. The first category, it is called hydrophytes. Hydrophytes आपको पता है aquatic plants जिनको कहा जाता है. That means plants which live in water, they are called as hydrophytes. Hydrophytes दो types के हो सकते हैं. Some hydrophytes are floating. That means वो वाले hydrophytes जो surface पे float करते हैं. And there are some hydrophytes which are submerged. So hydrophytes are either floating or either they are submerged. अगर एक hydrophyte on the surface of water होगा, we call it floating hydrophyte. अगर एक hydrophyte below the level of water होगा, we call it as submerged hydrophyte. उसके बाद जो hydrophytes है, further मैं इसके दो types करूंगा. Some hydrophytes or some aquatic plants are present in case of saline water. Some are present in case of fresh water. That means habitat की हम बात करते हैं, aquatic plant ही है, मगर कुछ plants ऐसे हैं जो saline water में prefer करते हैं, जिनको आप बोलते हो marine aquatic plants, और कुछ plants ऐसे हैं जो prefer करते हैं fresh water में. So this was the first discussion regarding the hydrophytes. तो hydrophytes जो है दो types के, floating, submerged, they can be saline or they can be fresh water. I'll give you some examples of hydrophytes जो आप याद रखोगे, and you will note down. One of the common example, lotus. Another example is hydrilla. Another example is zostera. Another example is wolfia. These are all examples of aquatic plants. लोटस तो आपने देखा होगा, जो यूजुअली हम यूज करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ. निलंबू न्यूसिफेरा. हाइड्रिला एक्वाटिक प्लांट है. जोस्टीरा, वुल्फिया कल हमने कहा था, इट इज स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म. सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स और हाइड्रोफाइट्स. So let us discuss the second category of plants. On the basis of habitat, the second category, it is called as xerophytes. Now, what actually xerophytes are? Xerophytes वो वाले plants हैं. Xerophytes are those plants which live in water scarcity condition. That means ये ऐसी conditions में रहते हैं जहाँ availability of water बहुत कम होगा. जैसे deserts की हम बात करते हैं. Xerophytes are present in desert areas, or they are present in those areas where there is least availability of water. And one of the common example of xerophyte आपने सुना होगा cactus, and cactus का botanical नाम बार बार हमारे पास आएगा, that is called as opuntia. So ये second category हो गई बेटा xerophytes. Now third category of plants on the basis of habitat, they are called as mesophytes. So mesophytes क्या है? Those plants which live in intermediate condition. वो वाले plants जो moderate conditions में रहते हैं, न तो ज्यादा पानी है न तो कम पानी है, they are called as mesophytes. And in fact I should say that most of the plants जो आपके इर्द गिर्द plants हैं, most of the plants which are present in our surroundings, they are all mesophytes.
चिनार की बात करेंगे, इट इज अ मीजोफाइट। एप्पल ट्री की बात करेंगे, इट इज अ मीजोफाइट। सैलिक्स या पॉपुलस की बात करेंगे, इट इज अ मीजोफाइट। That means all those plants which live in moderate conditions, they are called as mesophytes. So let us discuss the next one, जो कि already हमने किया है, aquatic plants की ही category, that is called as fourth one, जिसको हम कहते हैं halophytes. Halophytes तो already हमने किया है aquatic plants में. Halophytes वो वाले plants हैं which live in saline conditions. Plants which live in saline conditions, they are called as halophytes. Plants which live in saline conditions, they are called as halophytes. And one of the common example of halophyte, आपने सुना होगा बेटा mangroves का नाम. Mangroves are one of the examples. Morphology of root में भी mangroves discuss हो जाएंगे. So here you'll write mangroves. The botanical name is Rhizophora. Now these Rhizophora are examples of halophytes. So ये चार category है on the basis of habitat. So next we discuss classification of plants on the basis of, this is classification of plants on the basis of light requirement. This is classification of plants on the basis of light requirement. Now light requirement के हिसाब से plants के दो categories हैं. One type of plants are called as heliophytes. एक category है जिसका नाम है heliophytes, and another one is called as sciophytes. On the basis of light requirement, plants are classified into two groups. First one, it is called heliophytes, and another one is called sciophytes. So what is heliophyte and what is sciophyte? Those plants which love to live in open sunlight. कुछ ऐसे plants हैं जो पसंद करते हैं रहना open sunlight में, open light में, bright sunlight में. The plant category is called as heliophytes. और sciophytes क्या है? Some plants which love to live in shady conditions, or I should say plants which live in shade, जो पसंद करते हैं ज्यादा bright sunlight नहीं बल्कि moderate sunlight, और plants which prefer to live in shady areas, they are called as sciophytes. बेटा heliophytes की अगर हम बात करेंगे, one of the common example of heliophyte is rice. Another example of heliophyte is wheat. Cereals जो होते हैं mostly they are heliophytes. लेकिन sciophytes की अगर हम बात करते हैं, shade loving plants, one of the common group of shade loving plants, it is called as bryophytes. Bryophytes को कहा जाता है amphibians of plant kingdom because they prefer shade instead of the bright sunlight. यहां आगे चलने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं. जब एग्जाम के टाइम आपको क्वेश्चन आता है हेलियोफाइट और स्कायोफाइट, तो आप कैसे याद रखोगे? उस टाइम आपको पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं बोलता हूं सबको हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है इट विल लीड टू कंफ्यूजन. हेलियोफाइट ओपन होता है या स्कायोफाइट? सो दोनों में से एक आप याद करोगे. स्कायो आप ऐसे याद रखो, एस स्टैंड्स फॉर शेड, एस स्टैंड्स फॉर शेड, तो सीधे आपको याद रखेगा स्कायोफाइट मीन शेड लविंग, और हेलियोफाइट हो गया सीधे बेटा, हेलियोफाइट हो गया सीधे, it means bright sunlight. Now next one, classification of plants on the basis of reproductive events. एक प्लांट अपने लाइफ साइकिल में कितनी बार रिप्रोडक्शन करता है? We have two categories of plants. On the basis of reproductive events, plants are classified into two categories. The first category, it is called as monocarpic. The second category is called as polycarpic. The first category is called monocarpic. The second category is called as polycarpic. क्या होता है monocarpic और क्या होता है polycarpic? Mono means one, poly means many. Mono means one, poly means many. तो बात सिंपल है, वो वाले प्लांट्स जो अपने लाइफ साइकिल में एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं, which reproduce only once in their life cycle, they are called as monocarpic. And plants which reproduce multiple times in their life cycle, plants which reproduce multiple times in their life cycle, they are called as polycarpic.
एक बात यहाँ बेटा, देयर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्या है मोनोकार्पिक जो अपने लाइफ साइकिल में एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन करने का क्या मतलब है? रिप्रोडक्शन करने का मतलब है फ्लावरिंग करना। फ्लावरिंग करने का क्या मतलब है? जब एक प्लांट फ्लावरिंग करता है तो जाहिर सी बात है वो देता है फ्रूट। सो इन अदर वेज हम बोल सकते हैं वो वाले प्लांट्स जो अपनी लाइफ साइकिल में एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं, या जो अपनी लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं, या जो अपने लाइफ साइकिल में एक बार फ्रूट देते हैं तो उसके बाद मर जाते हैं, वो वाले प्लांट्स का नाम है मोनोकार्पिक। पॉलीकार्पिक वो वाले प्लांट्स जो अपनी लाइफ साइकिल में बहुत बार रिप्रोडक्शन करते हैं। बहुत बार रिप्रोडक्शन करने का मतलब है बहुत बार फ्लावरिंग करते हैं। बहुत बार फ्लावरिंग करने का मतलब है बहुत बार फ्रूट देते हैं। उन टाइप्स ऑफ प्लांट्स को कहा जाता है पॉलीकार्पिक। अब मसला एक है बेटा, मोनोकार्पिक की हम जब बात करते हैं, मोनोकार्पिक में कौन सी एग्जाम्पल है? यूजुअली दो कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, एनुअल्स एंड बायनियल्स। अभी नहीं पता एनुअल और बायनियल क्या है, इन द नेक्स्ट आई विल डिस्कस। एनुअल्स एंड बायनियल्स आर मोनोकार्पिक and perennials are polycarpic. Annuals and biennials are monocarpic while perennials are polycarpic. क्वेश्चन मार्क रखूंगा, एनुअल और बायनियल क्या होता है, पेरिनियल क्या होता है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। आई एम डिस्कसिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। लेकिन मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक के रिलेटेड एक और बात, एनिमल्स में मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक के लिए दूसरी टर्म्स है। इन एनिमल्स monocarpic term is replaced by simiparous. That means वो वाले एनिमल्स जो अपने लाइफ साइकिल में एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं और मर जाते हैं, they are called simiparous, and polycarpic is replaced by heteroparous. That means वो वाले एनिमल्स जो अपने लाइफ साइकिल में बहुत बार रिप्रोडक्शन करते हैं। अब आप बताओ, हम आर वी simiparous और heteroparous? Definitely human beings are heteroparous. So again I am giving you the trick. You may forget simiparous and heteroparous. दोनों में से कौन होता है one और कौन होता है many? तो कैसे याद रखोगे? We are heteroparous. We are able to reproduce multiple times in our life cycle. So monocarpic is replaced by simiparous. Polycarpic is replaced by heteroparous. Now see, on the basis of reproductive events भी हो गया। Now on the basis of lifespan, चलो इसी को स्टार्ट करते हैं। On the basis of lifespan, plants are classified into following categories. The first category, it is called as ephemeral. On the basis of lifespan, plants are classified into following categories, that is ephemeral. Second one, it is called annual. Third one, it is called as biennial, and fourth one, it is called as perennial. I repeat it once again. On the basis of lifespan, एक plant का lifespan कितना है? Plants are classified into following categories. The first category, it is called ephemeral. Second one, it is called as annual. Third one, biennial. Fourth one, perennial. तो क्या होता है ephemeral, annual, biennial and perennial? It's very simple. Plants which have a very short life cycle. Plants which have a very short or short life cycle, they are called as ephemeral. Ephemeral का मतलब ही होता है short lived. By ephemeral we mean short lived. ठीक है, ephemeral we have very short span of life cycle. That means एक plant है, अपना vegetative stage, उसके बाद reproductive stage, flowering stage जल्दी जल्दी करता है, and ultimately it vanishes. It is called as ephemeral. उसके बाद biennial की बात, annual की बात करते हैं। Plants which complete their life cycle in one growing season. That means वो वाले प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट करते हैं, they are called as annuals. Biennials का क्या मतलब है? Plants which complete their life cycle into two growing seasons. जो दो सीजन्स में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, they are called as biennials. और उसके बाद perennials, plant which complete their life cycle in multiple seasons, or plants which live greater than 2 years.
2 साल से ज्यादा जिस प्लांट का लाइफ साइकिल है, दे आर कॉल्ड पेरिनियल्स। रिपीट करूंगा एक बार, एफिमेरल ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, एक प्लांट का लाइफ स्पैन कितना है, कितने टाइम तक रहता है। एफिमेरल जो है, plants which have a very short life cycle, they are called ephemeral. Annual, plants which complete their life cycle in one growing season. Biennial, plants which complete their life cycle in two growing season. Perennial, plants which complete their life cycle in मल्टीपल ग्रोइंग सीजन। दैट मीन्स पेरिनियल वो वाला प्लांट है जिसको आपने पिछले साल भी देखा, उसके पिछले साल भी देखा, इस साल भी देखा और अगले साल भी देखोगे। जाहिर सी बात है आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो 2-3 साल से परसिस्टेंट है, तो उसको आप कहोगे पेरिनियल। Now let us give the examples of these ephemerals, annuals, biennials and perennials. One of the example of ephemeral plant is argemone. एक example, one of the example of ephemeral plant जो है, that is argemone. argemone का है, it is approximately 15 to 20 days. इसका जो लाइफ साइकिल है 15 से 20 दिन इसका लाइफ साइकिल है। एनुअल प्लांट्स तो आपको कितने ही पता होंगे, राइस इज एन एनुअल प्लांट, व्हीट इज एन एनुअल प्लांट। यूजुअली जो सीरियल्स होते हैं दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन ग्रोइंग सीजन, उसके बाद मर जाते हैं। बाइनियल वो वाला जो 2 सीजन में है, एक सीजन में अपना वेजिटेटिव स्टेज, दूसरे सीजन में अपना रिप्रोडक्टिव स्टेज कंप्लीट करते हैं। वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल इज रेडिश। मगर मसला एक है, मेरा सवाल है आपके लिए, नाउ अगर एफिमेरल है, एनुअल है, बायनियल है, दैट मींस ये वो वाले प्लांट्स हैं 15 से 20 दिन, एक सीजन, 2 सीजन और अल्टीमेटली मर जाते हैं। हैव यू एवर थॉट हाउ दीज प्लांट्स ग्रो नेक्स्ट ईयर अगेन? ये प्लांट्स अगले साल कैसे आ जाते हैं? ये एफिमेरल है, एनुअल है या बायनियल है, ये प्लांट्स अगले साल आएंगे क्योंकि इन्होंने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है सीड। सो इन्होंने अपने आप को कंडेंस करके रखा सीड में, अगले साल ये प्लांट्स फिर से उग जाएंगे, फिर से ग्रो करेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज सीड। उसके बाद पेरिनियल जो है, पेरिनियल वो वाला प्लांट है जिसका लाइफ स्पैन 2 साल का है। लेट मी गिव यू अ कॉमन एग्जांपल, मैं एप्पल की बात करूंगा। एप्पल अगर आपके गार्डन में है, पिछले साल भी था, पिछले साल भी आपने फ्रूट खाया एप्पल का उसी प्लांट से, इस साल भी खाओगे, अगले साल भी खाओगे। दैट मींस वो वाला प्लांट जिसका लाइफ साइकिल 2 साल से ज्यादा है। अगर आपके गार्डन में एप्पल है, आप बोलोगे सर एप्पल जो है इट इज एक्चुअली अ पेरिनियल। नाउ आई एम गोइंग टू रिलेट दिस लाइफ स्पैन विद द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। हमने कहा था कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के हिसाब से प्लांट्स की 2 कैटेगरीज हैं, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। एफिमेरल, एनुअल, बाइनियल अपने लाइफ साइकिल में खाली एक बार फ्लावरिंग करता है, उसके बाद मर जाते हैं। तभी तो हमने कहा एनुअल्स, बाइनियल्स एंड इनफैक्ट एफिमेरल्स दे आर आल्सो मोनोकार्पिक। लेकिन पेरिनियल क्या है? पेरिनियल पॉलीकार्पिक है। पेरिनियल इज पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक का क्या मतलब है? बहुत बार फ्लावरिंग करता है। आपकी लॉन में, आपकी गार्डन में एप्पल का ट्री है जो 4-5 साल से वहां है और 4-5 साल से हर साल वो फ्लावरिंग करता है, हर साल वो आपको फ्रूट देता है, तो जाहिर सी बात है पेरिनियल जो है, पेरिनियल्स आर यूजुअली पॉलीकार्पिक। बट बायोलॉजी एज यू नो दैट इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, आप उस एग्जांपल को याद याद रखोगे। बेटा बैम्बू का नाम सुना है? हाँ, बैम्बू जो है इट इज ए पेरिनियल। बैम्बू जो है इट इज ए पेरिनियल, तो क्या होना चाहिए, मोनोकार्पिक या पॉलीकार्पिक? बैम्बू इज पेरिनियल बट इट इज मोनोकार्पिक। बैम्बू इज पेरिनियल बट इट इज मोनोकार्पिक। बैम्बू जो है अपने लाइफ साइकिल में एक ही बार प्रोडक्शन करता है। बैम्बू इज पेरिनियल बट इट इज monocarpic. This is all regarding the on classification of plants on the basis of lifespan. Now let us discuss the classification of plants on the basis of habit. बेटा जब बात करते हैं on the basis of classification of plants on the basis of habit, बेटा जब बात हैबिट की करते हैं, हैबिट का क्या मतलब है? आप बोलोगे हैबिट का मतलब होता है आदत, नहीं, हैबिट का मतलब है फॉर्म। एक प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है? बाय हैबिट ऑन द वी मीन हाउ दिस एक्चुअली प्लांट लुक्स लाइक। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट प्लांट्स आर क्लासिफाइड। ये तो बच्चे को भी पता है, 6th के बच्चे को
First one, it is called as herb. The first category, it is called as herb. The second category, it is called as shrub. And the third category, it is called as tree. I repeat, on the basis of habit, plants are classified into three groups. They are called as herbs, shrubs and trees. तो बच्चे को भी बताएंगे हर्ब क्या होता है. वो वाले प्लांट्स जिनका स्टम जो होता है ग्रीन एंड फ्रेजाइल स्टम. प्लांट्स हैविंग ग्रीन एंड फ्रेजाइल स्टम. एक प्लांट ऐसा है जिसका एक हर्बेशियस स्टम है, ग्रीन कलर स्टम है, फ्रेजाइल स्टम है, और ये 2 मीटर से ज्यादा इसका जो हाइट होता है, इट ग्रोज लेस देन 2 मीटर. 2 मीटर से ज्यादा ये ग्रो नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? यूजुअली जो है बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन एंड फ्रेजाइल स्टम. नाउ प्लांट हैविंग ग्रीन एंड फ्रेजाइल स्टम which is less than 2 meter in height, they are called as herbs. And remember always, majority of the monocots are herbaceous. Monocot plant की अगर हम बात करेंगे, most of the monocots are herbaceous. Grasses, they are also herbaceous plants because they have a fragile and green stem. जब बात shrubs की करते हैं, shrub क्या है? Shrub is an intermediate category. They are also called as bushes. नाउ श्रब जो है ये एक इंटरमीडिएट कैटेगरी है ट्री और हर्ब के बीच में. दैट मींस प्लांट्स व्हिच आर टॉलर देन हर्ब्स बट शॉर्टर देन ट्रीज, दे आर कॉल्ड एज श्रब्स. बहुत आसान सी बात कही मैंने. प्लांट्स व्हिच आर टॉलर देन हर्ब्स बट दे आर शॉर्टर देन ट्रीज, दे आर कॉल्ड एज हर्ब्स. इनमें क्या होता है? इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस सम हर्ब्स या मेजॉरिटी ऑफ द हर्ब्स में नीचे लोअर पोर्शन में दे हैव सम हार्ड वुडी स्टम्प. And one of the common example of shrub, it is the rose. One of the common example of shrub, it is the rose. The third category of plants on the basis of habit, that is tree. Tree को मैं अलग से लिखूंगा बेटा इधर. Now मसला है यहाँ tree होता क्या है? Now एक ऐसा प्लांट, ट्री एक ऐसा प्लांट होता है जो टॉल होता है और इसमें एक मेन स्टम होता है, वुडी मेन स्टम, which is usually woody. एक woody main stem होता है जिस woody main stem को बोला जाता है trunk, और इस trunk के ऊपर होते हैं branch. I repeat it once again dear. Tree होता क्या है? Tree is an highest category of plants which are taller than shrubs. They have a main woody stem that is called a trunk, and this trunk has its branch. तो मसला ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, कॉमन लैंग्वेज में अगर आपको वाइवा में कोई पूछेगा प्लांट और ट्री में क्या फर्क है, you'll be confused. आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. आपका जवाब होगा प्लांट और ट्री दोनों तो सेम है. नहीं बेटा, सेम तो नहीं है. प्लांट और ट्री में ये फर्क है, प्लांट एक जनरल नाम है. नाउ प्लांट इज अ ब्रॉडर टर्म. ट्री एक ऐसी कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है जो सबसे लंबे होते हैं, जिनमें एक वुडी स्टम होता है और इसके वुडी स्टम होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रंक, और इसके ब्रांच होते हैं. ट्रीज के आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, लेकिन यहां मैं आपको बताऊं बेटा, ट्रीज जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. नाउ वन टाइप ऑफ ट्री जो है, वन टाइप ऑफ ट्री, इट इज कॉल्ड एज कॉडेक्स और वी कॉल इट एज कॉलमनर. ट्रीज की टाइप्स बता रहा हूं. वन टाइप ऑफ ट्री इट इज कॉल्ड कॉडेक्स और कॉलमनर. द सेकेंड कैटेगरी इट इज कॉल्ड एज excurrent. The second category is called excurrent, and the third category it is called as delicucet. बहुत आसान है, बहुत आसान. ट्रीज जो है दो टाइप्स के हैं. वन इज कॉल्ड कॉडेक्स और कॉलमनर, सेकेंड वन excurrent, थर्ड वन एज delicucet. तो क्या मतलब है कॉडेक्स और कॉलमनर का? कोई ऐसा ट्री जिसमें एक अनब्रांचेड स्टम होगा and there's a crown of leaves at the top. I repeat, unbranched stem with crown of leaves at the top. आपने बेटा palm tree देखा होगा, आपने date palm देखा होगा, इनफैक्ट आपने जिम्नोस्पर्म देखा होगा जिसका नाम है साइकस. These are all examples of caudex or columnar trees. So क्या होता है caudex और columnar tree? An unbranched stem with crown of leaves at the top. Palm, date palm, cycas. In fact, coconut is also example. Now I will write here, in caudex or columnar there is an unbranched stem. एक unbranched stem है with a crown of leaves at the top.
crown of leaves at the top, एक crown of leaves at the top है, that is called as कॉडेक्स और कॉलमनर। तो बात करते हैं एक्स करंट की। एक्स करंट क्या है? इन दिस एक्स करंट एक ऐसा ट्री है विच इज यूजुअली कोन शेप्ड। सबसे पहली बात मैं आपको बोलूंगा एक्स करंट होता क्या है। एक्स करंट इज ए कोन शेप्ड ट्री जिसमें ब्रांच जो होते हैं, एक मोनोपोडियल स्टम होता है, कोई उसका ब्रांच मतलब मेन स्टम जो होता है, इट हैज ओनली वन ब्रांच, दैट इज कॉल्ड मोनोपोडियल। एक मोनोपोडियल स्टम होता है और इस मोनोपोडियल स्टम के ऊपर जो ब्रांच प्रेजेंट होते हैं, these branches are present in acropetal order. The branches are present in acropetal order. अब acropetal आपको ऑर्डर अगर पता नहीं है तो मैं बताऊंगा। acropetal ऑर्डर वो होता है youngest at the tip, oldest at the base। मैं इधर डायग्राम बनाऊंगा एक्स करंट की। For example, this is a main stem which is monopodial। सबसे oldest branch ये है, उससे बाद सेकेंड ब्रांच, इससे यंगेस्ट ये, इससे यंगेस्ट ये, इससे यंगेस्ट ये। The branches are present in the acropetal order. This is branch number 1 which is the oldest one. उसके बाद 2, 3, 4, 5। अगर आप ब्रांच की लेंथ देखोगे, फर्स्ट वन इज द लॉन्गेस्ट, सेकेंड वन इससे छोटा, थर्ड वन इससे छोटा, फोर्थ वन इससे छोटा, फिफ्थ वन इससे छोटा। इसी को बोला जाता है एक्रोपेटल ऑर्डर। यंगेस्ट एट द टिप, फिफ्थ वन इज द यंगेस्ट ब्रांच, ओल्डेस्ट एट द बेस, फर्स्ट वन इज एट द बेस। दिस इज कॉल्ड एज एक्स करंट। तो उसके बाद बेटा बात करेंगे एक्स करंट की एग्जांपल। आपने सुना होगा पाइनस। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, इट हैज ए कोन शेप्ड अपीयरेंस, दे आर आल्सो कॉल्ड एज कॉनिफर्स। एक और एग्जांपल पॉलीएल्थिया, इट इज आल्सो हैविंग ए कोन शेप्ड अपीयरेंस। पॉलीएल्थिया आल्सो हैविंग द कोन शेप्ड अपीयरेंस। तो ये हो गया बेटा एक्स करंट। अब बात करेंगे डेलिक्यूसेंट की। डेलिक्यूसेंट में एक ब्रांच जो है, इट गिव्स मोर देन वन ब्रांच, दैट मींस मोनोपोडियल नहीं है, इट गिव्स मोर देन वन ब्रांच, and as a result of more than one branch, this tree attains dome shaped appearance। एक ट्री में अगर डोम शेप्ड अपीयरेंस आ जाएगा, that tree it is called as deliquescent, and example is the mango। if a tree attains dome shaped appearance, that tree is called as deliquescent। this is classification of plants, the classification of trees। But now we are going to discuss the last segment of this lecture, that is classification of plants on the basis of nutrition। ये तो अजीब सी बात आपके सामने आ गई, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि आपको तो ये कॉन्सेप्ट है प्लांट्स आर ऑल ऑटोट्रॉफ्स। नो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू ऑटोट्रॉफ्स। नाउ ऑटोट्रॉफ तो मुझे नहीं समझाना है, वो वाले प्लांट जो अपना फूड मैन्युफैक्चर खुद करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ। And there is another category of plants that is called as heterotroph। आपने आज तक heterotroph plant तो नहीं सुना होगा, आज आप सुन रहे हो। So plants, what are heterotrophic? Heterotrophic plants are those plants which obtain full or whole of which obtain a part of their nutrition or whole of their nutrition from the outside। That means वो वाले plants जो अपना न्यूट्रिशन इधर पार्टली थोड़ा सा या फुली दे आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर एक्सटर्नल सोर्स, दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स। सो हेटेरोट्रॉफस प्लांट्स जो है बेटा, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, दे हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नाउ एज फार एज दीज हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स आर कंसर्न, they are broadly divided into 3 categories। First one, it is called as saprophytes। The second one is called as parasites, and third one is called as insectivorous plants। Now first one it is called saprophytes, second one is called parasites, third one it is called as insectivorous plants। ऑटोट्रॉफ मुझे डिस्कस नहीं करना है, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। तो बात करेंगे बेटा सैप्रोफाइट्स की। सैप्रोफाइट कौन सा प्लांट आपको पता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स व्हिच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एक ऐसा प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन कहां से हासिल करेगा? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। और आज के बाद एग्जाम्पल याद रखोगे, मोनोट्रापा। मोनोट्रापा एक ऐसा प्लांट है जो कि क्या है बेटा? इट इज ए सैप्रोफाइट। तो बात करेंगे बेटा पैरासिटिक प्लांट की।
पैरासिटिक प्लांट कौन सा प्लांट है? वो वाला प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा किसी दूसरे प्लांट से, लिविंग होस्ट से डिराइव करेगा. सो एज फार एज दिस पैरासिटिक प्लांट इज कंसर्न, इसकी दो कैटेगरीज है. सम प्लांट्स आर टोटल पैरासाइट्स एंड सम प्लांट्स आर सेमी पैरासाइट्स. टोटल पैरासाइट को कहा जाता है हॉलो पैरासाइट, सेमी पैरासाइट को कहा जाता है बेटा हेमी पैरासाइट. आई रिपीट, पैरासिटिक प्लांट्स जो है ये कैटेगराइज किए हैं दो ग्रुप्स में. वन इट इज कॉल्ड हॉलो पैरासाइट, इट इज अ टोटल पैरासाइट. एंड उसके बाद हेमी पैरासाइट, इट इज अ पार्शियल पैरासाइट. जब बात एक प्लांट की करेंगे, वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ टोटल और हॉलो पैरासाइट इज कस्क्यूटा. आपने सुना होगा इस प्लांट का नाम कस्क्यूटा जो है, इट इज अ टोटल स्टम पैरासाइट. आई रिपीट, दिस कस्क्यूटा इज ए टोटल स्टम पैरासाइट. दैट मींस दूसरे प्लांट के स्टम के ऊपर ग्रो करता है. उसके बाद दूसरा प्लांट जो है दैट इज रैफ्लेशिया. आपने सुना होगा रैफ्लेशिया इज अ रूट पैरासाइट. आई विल राइट हियर कस्क्यूटा is a total stem parasite while Rafflesia is total root parasite. I repeat, Cuscuta is a total stem parasite while Rafflesia is a total root parasite. उसके बाद बेटा बात करेंगे पार्शियल और सेमी और वी कॉल इट एज हेमी पैरासाइट की. हेमी पैरासाइट वो वाला पैरासाइट होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट व्हिच गेट्स सम न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट. फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल. विस्कम एक प्लांट है. आई विल राइट हियर विस्कम इज ए प्लांट. एक प्लांट है बेटा जिसका नाम है विस्कम. अब विस्कम क्या है? इट इज ए पार्शियल स्टम पैरासाइट. इट इज ए पार्शियल स्टम पैरासाइट. विस्कम इज अ पार्शियल स्टम पैरासाइट. तो ये बात आ गई पैरासाइट्स की. विस्कम इज अ पार्शियल स्टम पैरासाइट. इसी के साथ बेटा एक और एग्जांपल है सेंटेलम. सेंटेलम की अगर बात करेंगे, इट इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट. It is a partial root parasite. Centellum is a partial root parasite. उसके बाद we have the last category of plant that is called as insectivorous. Now, as far as these insectivorous plants are concerned, these are actually the autotrophic plants. लेकिन ये वो वाले ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं जिनमें यूजुअली क्या होता है, नाइट्रोजन डिफिशिएंसी होती है. So, in order to supplement the nitrogen in these insectivorous plants, they supplement their nitrogen by catching different types of insect. Not only they catch insect, they catch and also digest these insects. क्यों कैच करते हैं, क्यों डाइजेस्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल. सो इन ऑर्डर टू ओवरकम द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? किनको कैच करते हैं? ये कैच करते हैं बेटा इंसेक्ट्स को. नाउ एज फार एज द एग्जांपल्स, ये आगे फिर से हमें पढ़ना है. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की एग्जांपल्स, नेपेंथीज पिचर प्लांट इसको कहा जाता है. नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया, ब्लेडरवर्ट इसको कहा जाता है, यूट्रिकुलेरिया. These are all examples of stem parasites. This was the second lecture regarding the morphology, and now in the next lecture I'll be coming up with the morphology of root.